Hello everyone, I am Sudhakar and today we have with us Mr. Shubham Darade. In this video, we will be sharing the experience of Mr. Shubham Darade, who has been placed in General Electric, popularly known as GE. He has been selected for the GE Renewable Energy business to work at Bangalore as a part of the Edison Engineering Development Program, also known as EEDP. Before we listen to Shubham, I would like to introduce him formally to our viewers. Shubham is a final year MTech student in the Department of Mechanical Engineering at IIT Bombay. His specialization in MTech is Design Engineering. Shubham has secured an All India rank of 138 in GATE 2019 Mechanical Engineering. At IIT Bombay, he has been a part of Hyperloop team. His interest mainly lies in finite element analysis, computational dynamics, and solid mechanics. Prior to joining IIT Bombay, he completed his BTech in Mechanical Engineering from KK Vaugh Institute of Engineering Education and Research, Nasik in 2019. Without further delay, I would request him to share his experience of getting placed in GE. Thank you, Shubham. Thank you for accepting my request. Yeah, thanks, Sudhakar. Yeah. So could you please share something about GE and the profile which you have been selected for? Yeah. So as you said that I have selected for GE Renewables in EEDP program. So Edison Engineer program is a 2-year of program in which you will get to do the work in 4 different projects, and these projects will be given by GE. There are a list of projects and you can select among those. And from after doing this 2 years of program, then you will get absorbed by some of the teams in which you have done the project. So this is the brief about this Edison Engineer program. And GE mainly recruits for 4 of the departments from IIT, that is renewables, aviation, gas power, and global research center. But this time it recruited only for 3 departments, that is renewables, GE power, and global research center. And among these I am selected in GE renewables. हमने GE के बारे में बात कर ली और so I guess the program which you have mentioned कि EEDP है, so just for our viewers ये एक rotation program है जैसा शुभम ने बताया, और इसमें over the span of 2 years we will be working on 4 different projects. यही है ना? Yes, right. तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और 2 साल के बाद हाँ जैसे तुमने बताया कि वो एक फाइनली किसी में एब्जॉर्ब कर लेंगे या एलोकेट कर देंगे हम. Exactly. Just for our viewers, GE, I guess GE is the company which have been founded. One of the founders of GE is Thomas Alva Edison. Yeah. That's why it is known for Edison Engineer program. So yes, that's why they gave this name. Yeah, तो हम सब लोगों ने पढ़ा था इंटरव्यू के टाइम पे, तो जितना मुझे याद है कि 2 लोग मुझे याद हैं, एक जेपी मॉर्गन और एक थॉमस अल्वा एडिसन. Yeah, exactly. तो आई थिंक 5-6 लोग थे कोर फाउंडर्स में, बट आई गेस ये दोनों मुझे नाम याद रह गए. So I guess GE is a firm which is more than 100 years old, I guess. Yeah, sure. Yeah, definitely. Yes, and so yeah, कुछ चीजें मैंने भी पढ़ी तो मुझे याद आ रही है. तो उसमें रिन्यूएबल्स में थोड़ी अभी रिसेंटली आई है, पहले तो बाकी बिजनेसेस में थी मेनली, लेकिन अभी आई थिंक 1960 और 1980, आई एम नॉट श्योर, बट तब उसने विंड एनर्जी का चालू किया था, तो उसके बाद अभी वो हाइड्रो में आई है जस्ट रिसेंटली. Okay, yeah. Sounds like that's why I think they are hiring more number of people in renewable energy business. Yeah. Also, they have some good research going on in this field of renewables, because if you know that there is a Haliade X wind turbine, and which is the biggest wind turbine in the world, and it is producing almost in one rotation of that wind turbine. It produces the electricity which is sufficient for 2 days for each house. So in each rotation, okay. You have done a very good homework before applying for GE. Yeah. अच्छी बात है, वो हम सब लोग करते हैं, अच्छी बात है. इनफैक्ट कंपनी के बारे में पता. It is necessary because some sort of questions are there, like why you want to join the GE, then you should know something about them, and they actually ask you like you are from mechanical background or what can you do for us. So you should have proper answer that okay, how the wind turbine works, how the hydro power plant works.
and all. Yes, So yes. from that we can tell them the solution. Very true. So I guess we have pretty much talked about different businesses of GE and about this EDP program for which you and thankfully I have also been selected. So इसके बारे में बात हमने कर ली. अब जो जितनी सारी चीजें हैं तुम्हें हम अब बात करते हैं कि लाइक इसमें तुम किन डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन था और तो इसमें कोई सीपीआई कट ऑफ था क्या, उस बारे में तुम कुछ बताओ. हाँ, तो there were 3 departments for which GE opened the JAF, but they didn't mention that okay, we are opening for 3 different departments as of renewables, gas power, and global research center. After getting shortlisted in particular department, then they told us okay, there are these 3 number of departments for which we are hiring, and you got selected in this department or that department. Before starting the test or before opening the JAF, we didn't know anything like okay, there are these 3 departments, and among these 3 departments I got selected in renewables and gas power, and for GRC I didn't get shortlisted. I think for all these 3 departments only one test was taken, and from that only they shortlisted that okay, among this department where this candidate would fit. Okay, so by these departments we mean the business of GE, like Business, yeah. the various businesses of GE you are referring to. So okay, so yeah, obviously this time हमारे पास बस JF आई थी और उसके बाद जब इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आई then we got to know कि इस बिजनेस के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा. Exactly, yeah. हाँ, और फिर इंटरव्यू अकॉर्डिंगली हुए थे और फिर ठीक है. तो मैं ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हें याद है कि ये जो जैफ ओपन हुआ था हमारे यहाँ IIT बॉम्बे में, वो किन किन डिपार्टमेंट, मतलब मैं डिपार्टमेंट बात करूँगा जैसे मैकेनिकल, एरोस्पेस, किन के ओपन हुआ था. So I might not cover all the departments, but it was mainly metallurgical department, then electronics department, electrical department, mechanical department. These are mainly 4 core departments for which they were open, and also they strictly mentioned in this JAF that okay, we are priorly looking for the candidate who is good in design or manufacturing and materials and some power electronics stuff. So for this they were open. Okay, तो फिर मेरा कैसे ले लिया उन्होंने. हाँ, तो तुम्हारा उसके थोड़ा रिलेवेंट लगा होगा उनको कि GRC में और रिन्यूएबल्स में लगता होगा वो. हाँ, लेट्स सी. तो आई गेस GE शुरू से GE ने एमटेक के लिए उसने ओपन हमेशा GE एमटेक के लिए ओपन करती है जितना मुझे याद आ रहा है. बीटेक के लिए हाँ, नहीं, वो सिर्फ ड्यूअल डिग्री और एमटेक के लिए ओपन करती है, और ये एडिशन इंजीनियर प्रोग्राम मेनली उन्हीं के लिए है. मास्टर्स होना ही चाहिए, वो उनके वेबसाइट पे भी लिखा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मास्टर्स. तो यही सारे जो हमें जो याद आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स अगले बार के भी जो बैचेज होंगे दे कैन ऑलवेज सी की ये जब किसके लिए ओपन है. तो जैसे जितना हमें याद है कि एरोस्पेस, मैकेनिकल, सिस्टम्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए ओपन था, बट हाँ ओनली डुअल डिग्री एंड मास्टर्स. I think I'm not sure about aerospace. Okay, I think it was not open, but you can check. Okay, yeah, of course we can check, and our viewers also they can have a look on the web. जब अगले साल का सीजन ओपन होगा तब भी उन्हें दिख जाएंगे. दिख जाता है. तो या और कोई CPI कट ऑफ था क्या इसमें, CPI कट ऑफ कुछ? As far as mechanical is concerned, they only shortlisted the candidates who are 9 above, because this time almost 6 people were there who got 9 above CPI only in design engineering. I'm talking about. So there was a lot of competition in mechanical design or in mechanical overall. So that's why they have to shortlist 9 above students almost in all the companies. I will not talk about only GE, but other core companies. They were also prioritizing their candidates based on the CPI, and they were preferably 9+. And only some companies were there, they choose 8+ or 8.5+. And I think GE का टेस्ट सबका हुआ, जो आखिरी जो शॉर्टलिस्ट था वो आई थिंक CPI बेस्ड लगा था. ओके, हो सकता है. हाँ, टेस्ट तो मैंने भी दिया था, और आई गेस डिजाइन में तुम्हारा ये 9 वाला डेफिनेटली दैट माइट बी डिफरेंट लगता है. लेकिन अभी लास्ट ईयर जो हुआ था शॉर्टलिस्ट, तो उसमें 1-2 बंदे ऐसे भी थे. लास्ट टाइम कैसा था हमारे डिपार्टमेंट में, डिजाइन के सिर्फ एक ही बंदा था शायद जो 9+ था, और बाकी सब 9 के नीचे थे. तो उन्होंने 8.2, 8.3 बंदे वालों को भी शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए.
ओके तो वो सब डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना चल रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, हम्म, और उसके हिसाब से उनको कितने बंदे शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। या दैट मेक्स सेंस। तुम्हारे भी डिपार्टमेंट से लोग जी में जाते रहे हैं, मेरे भी डिपार्टमेंट से जी में लोग लास्ट ईयर भी 2 लोग गए थे। तो आई थिंक जस्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस दे ऑलवेज हैव टू लुक फॉर कि सीपीआई का क्या करना है और कितना रखना है। ये बात Yes. सही है। और डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स के, जैसे तुम्हारे डिजाइन में बहुत सारे लोगों के 9 से ऊपर थे, तो उन्होंने ऊपर से 2 लोगों को ले लिया, और सिमिलरिटी के बारे में चूंकि 8 या उसके आसपास है, तो उसके आसपास के 2-3 लोगों को उसने ले लिया। तो यस, हाँ, तो आई सीपीआई फिल्टर नहीं था, बट उन्होंने बाद में तुम्हें थोड़ा बहुत देखा था सीपीआई। अब हम ओके, तो हमने डिपार्टमेंट्स की बात कर ली, हमने मोर और लेस सीपीआई की भी डिस्कस कर लिया कि सीपीआई इवन दो रिटन नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो रोल प्ले किया था सीपीआई ने, खासकर डिजाइन वालों में किसमें ज्यादा रोल प्ले किया था। और तो टेस्ट सबको देने दिया था, राइट? हाँ, टेस्ट तो ऑलमोस्ट सबको ही देने दिया था। हाँ। 8+ वालों को तो दिया ही था, मतलब जितने मेरे दोस्त थे। अच्छा, सबका था उसकी शॉर्टलिस्ट, आई थिंक टेस्ट सबका था शायद ना। टेस्ट, हाँ, मतलब मेरे जितने दोस्त थे वो तो 8+ के अराउंड के थे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं बाकी को, लेकिन हुआ होगा, मैं श्योर हूँ उसके बाद। डिपार्टमेंट में आई थिंक सब लोगों को टेस्ट देने दिया था, तो आई गेस हाँ। टेस्ट को देने दिया गया था। अलग बात है कि टेस्ट के बाद जो भी आउटकम आया वो अलग बात है। वो अलग बात। बात कर सकते हैं, हम टेस्ट के सिलेबस की बात करते हैं कि जैसे टेस्ट के सिलेबस में गिवन के जी कोर फॉर्म्स हैं, जी मतलब जी एक कोर फॉर्म है, तो उसके लिए तुम्हारे डिपार्टमेंट में मेनली मैकेनिकल में के स्टूडेंट्स के लिए जी ने कैसे क्वेश्चंस आए, और चूंकि जी ने डिफरेंट ब्रांचेस के लिए ओपन किया था, लाइक तुम जैसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड कंट्रोल, मैकेनिकल, तो एक कॉमन टेस्ट सबका हुआ था, या उन्होंने पहले कुछ लिया था चॉइस की मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछेंगे? तो जरा टेस्ट के तुम सिलेबस के बारे में थोड़ा बताओ। तो टेस्ट में उन्होंने ऐसा कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर अलग कोई डिपार्टमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं डाला था, क्योंकि ये टेस्ट कैसा है, कोक्यूब्स कंडक्ट करता है। तो कोक्यूब्स में आई थिंक उन्होंने बोल दिया होगा कि ठीक है, मैकेनिकल के बंदों के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चन डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डाल दो, ऐसा हुआ होगा। क्योंकि हमारे केस में सारे गेट के लेवल के क्वेश्चन थे और सिर्फ मैकेनिकल के क्वेश्चन थे, तो उसमें थर्मल के, मैन्युफैक्चरिंग के और डिजाइन के क्वेश्चन थे। जो अपन गेट में पढ़ते उतना अगर पढ़ के गए तो भी काफी था वो, और थोड़ा थियोरेटिकली भी ज्यादा क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी थे, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गेट में कैसा सिर्फ हम न्यूमेरिकली करते हैं, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल भी क्वेश्चन थे, और वो अगर तुम्हारा कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो वो भी तुमसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और दूसरा चीज, एप्टीट्यूड काफी इजी था। एप्टीट्यूड में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो जनरल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव रहता है वो सब क्वेश्चंस थे। और उसमें भी उन्होंने शायद सेक्शन डाले थे कि ये इंग्लिश का सेक्शन के 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन, ऐसा। तो वहाँ पे भी इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे वो भी। और टाइम आई थिंक कुछ तो 90 मिनट्स था, और उसमें ये सब बनाने थे। उसमें कुछ ऐसा ये लिमिट नहीं था कि ओके ये सेक्शन को तुमको 10 मिनट में ख़त्म करना है, अगले सेक्शन को 10 मिनट में ख़त्म, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे डालती है कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइम है। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे नहीं था, और क्वेश्चंस काफी इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जो कोर के क्वेश्चन, जैसे हाँ, तो बात सही है कि जब हम लोगों ने जॉब फिल किया हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा किस बच्चा किस ब्रांच का है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको वो वाले क्वेश्चन डिस्प्ले करा दिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे तुमने बताया कि जो कोर के क्वेश्चन मैकेनिकल के आए थे, थर्मल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस आए थे, वो तुम बोल रहे हो कि गेट के थे और इजी थे, तुम ऐसा कह रहे हो। तो उसके लिए तैयारी कैसे तुमने किया, तैयारी कैसे करनी चाहिए लोगों को? तो अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो वहाँ पे एक गेट मेडिजी का एक हैंडबुक आता था हमारे टाइम पे, तो वो मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था हमारे गेट के प्रिपरेशन के टाइम। तो मैंने वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए मैंने वो हैंडबुक अच्छे से पढ़ लिया था, और बाकी अपने जो गेट के शॉर्ट नोट्स है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, तो वो काफ़ी सफिशिएंट है तुम्हारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। और अगर तुम्हारा रिसेंटली अगर गेट हुआ है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल भी तुम्हारे बन जाएंगे। मेरा तो अभी 2019 में ही गेट का हुआ था ना, तो मतलब 1 साल पहले का सब मुझे याद आ रहा था, तो उससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ बच्चे गेट के प्रीवियस ईयर भी लगा रहे थे, अगर वो काफ़ी पुराना गेट दिया होगा उन लोगों ने, तो 2 साल पहले, तो भी कुछ आरए के लोग भी होते हैं ना, तो वो थोड़ा पुराना हो जाता है उनका नॉलेज गेट के लिए, तो वो ये गेट के प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं अगर तुमको गेट में थोड़ा श्योर नहीं है। और कुछ लोग तो जैसे आईआईटी से आते हैं, आईआईटी बीटेक करके, तो उनको गेट का कोई नॉलेज नहीं रखते, तो उनको यही सब करना चाहिए कि गेट के प्रीवियस ईयर लगानी चाहिए, और हैंडबुक्स जो मैंने बताया वो, और शॉर्ट नोट्स, तो ये सब रिवाइज करना मैंडेटरी है।
ओके, ओके। मतलब जेईई के टेस्ट के लिए कहीं न कहीं हमें जो गेट के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर राइट। जेईई टेस्ट इन फैक्ट। फॉर टेक्निकल, हाँ, फॉर टेक्निकल, टेक्निकल। टेक्निकल एप ओके। तो मतलब गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे कि जैसे गेट में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एकदम बड़े ही रहेंगे ऐसा कुछ नहीं रहता। उसमें छोटे क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट अच्छा रहता है उसका। तो यही वो क्विज़ वाले भी पूछ सकते हैं कि कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन छोटा आंसर है, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। तो वो तुम्हारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन से हो जाएगा। बट आई थिंक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बहुत कभी-कभी गेट में ऐसा होता है कि लेंथी क्वेश्चन्स आते हैं 2 मार्क्स में। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। वो राइट, सब राइट। जेईई में नहीं पूछा जाएगा, वहाँ नहीं, पे नहीं, टाइम क्योंकि यहाँ कम पे 1 मिनट ही रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 1 मिनट रहता है, तो तुम उसके हिसाब से तो आई देख लो। थिंक 1 मार्क्स के क्वेश्चन करना और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं चाहे कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें कि बस थोड़ा बहुत लिख-ला के समझ में आ जाएगा, तो उसको करने से दैट शुड बी हाँ। सफिशिएंट टू क्रैक द टेस्ट। और एप्टीट्यूड के लिए क्या किया तुमने अलग से जेईई के टेस्ट का? उसके लिए क्या? एप्टीट्यूड का लाइक हर एक टेस्ट के लिए बताऊंगा, सिर्फ जी के लिए नहीं, क्योंकि कैसा है कि जी का टेस्ट काफी इजी था। एप्टीट्यूड अगर तुम बोलोगे हाँ, तो हाँ। वो आर एस अग्रवाल से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आर एस अग्रवाल एप्टीट्यूड का बुक है, तो उतना पढ़ लेना, उसका सारा कंटेंट अच्छे से कर लेना। तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, मेनली टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जनरल एप्टीट्यूड से भी हो जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन करना अच्छा रहता है हमेशा। और दूसरा परीक्षा टेस्ट रहती है, आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करता है, तो वो काफ़ी अच्छे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ से प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसमें कुछ 25 के अराउंड टेस्ट रहते हैं, परीक्षा टेस्ट। तो वो अच्छे से लगा लेना, वो अच्छे क्वेश्चन डालता है वहाँ पे। तो उतना भी कर लिया तो भी यहाँ पे तुमका जी का निकल जाएगा। और ठीक है। अब ये ज़रा बताओ कि रिज़्यूमे तुमने कौन-से रिज़्यूमे से साइन किया था जेईई का ड्राफ्ट? तो यहाँ पे हम आईआईटी में 5 रिज्यूमेज अपलोड करते हैं, और उसमें जनरली जो 2 रिज्यूमेज रहते हैं वो 1 पेज रिज्यूमे, और 3 रिज्यूमे हमारे 2 पेज रिज्यूमे रहते हैं। तो उसमें भी हम फिर वो थोड़ा परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन कोर का डालना चाहिए, यहाँ पे कोर का डालना चाहिए, ऐसा करके। तो मैंने जो रिज्यूमे डाला था उसमें मोस्टली सब कोर ही था। ठीक है, स्टार्ट टू लेके एंड तक कोर था, लेकिन आखिरी में जो 2 लाइंस थी वहाँ पे बस थोड़ा डाटा साइंस का जो मैंने कोर्स किया था कोर्सेरा पे, तो उतना बस एक शॉर्ट में था। और बाकी वो 2 पेज रिज्यूमे था। 1 पेज रिज्यूमे मोस्ट प्रेफरेबली नहीं डालना चाहिए। 2 पेज रिज्यूमे में अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपन लोगों ने। तो उससे वो जनरली लोग देखते हैं, और जनरली सारे बच्चे वही सेंड करते हैं, 2 पेज रिज्यूमे। तो 2 पेज रिज्यूमे मैंने सेंड किया था, और मतलब पूरा कोर ही। हाँ, पूरा कोर था तुम्हारा। आई थिंक जितने लोगों से मैंने अभी भी बात की, जैसे अभी जो हमारे और भी जो हमने रिकॉर्ड किया सेशंस, वहाँ भी लोगों ने एमटेक के लोग ही थे सारे, उन्होंने वही बोला कि 2 पेज ही करना चाहिए। और हाँ, और चूँकि एमटेक के केस में कंटेंट भी होता है, क्योंकि बीटेक का प्रोजेक्ट उनका होता है, यहाँ भी उनके कोर्सेज होते हैं, तो आई थिंक दे हैव सम कंटेंट टू फिल द रिज्यूमे। तो या उनके क्योंकि उसको आप काफी मतलब एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि उनको क्या पता, मतलब तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट से मतलब अच्छा लग जाए वो तुम्हारा, या फिर तुम्हारा कोर्स प्रोजेक्ट अच्छे लग जाए, तो वो सारा एकदम डिटेल में तुम लिख सकते हो 2 पेज रिज्यूमे में। तो वो काफी एलाबोरेटिव मैनर में लिखने के लिए अच्छा रहता है। बात सही है, बात सही है। तो ठीक है, हमने तो रिज्यूमे की हमने बात कर ली, और हमने ये भी बात कर ली सीपीए वगैरह की चीज़ें की हमने बात कर ली। तो आई गेस हमने कहीं न कहीं मतलब टेस्ट का सिलेबस, सीपीआई, कंपनी की प्रोफाइल, डिपार्टमेंट्स, ये सब चीज़ें हमने बात कर ली। तो इसके बेसिस पे अब हम मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अब हम इंटरव्यू की बात कर सकते